This call is now being recorded. So, welcome everyone to this session where I'll be starting with fluid machines. Okay, and this fluid machine course obviously would not be a full-length course like you have currently in the semester. So we won't be going into all the intrinsic details of it, but yeah, from the conceptual point of view, like how the machines work, what is the basic governing principle behind these turbines would definitely be taught in this session. So principle of fluid machines would be the convenient way of explaining this topic or naming this topic. Chaliye. So lecture number 19. Okay, friends. And today is 22nd December 2002 होता तो क्या बात 20. Okay. Now, first of all, let us do some kind of a formal discussion on fluid machines. कि fluid machines होती क्या? पेन भाई कहाँ गया पेन? Okay. So what are fluid machines? In a simple language, if you want to define fluid machines, then it is nothing but device that extracts energy from fluid or impart energy to fluid. So, of course, the devices which extracts energy from the fluid is what is called as a power producing device. Okay, मतलब fluid के पास बहुत सारी energy है, उससे energy extract करें. So these devices are called as power producing devices. And devices on which we impart energy, they are called as a power absorbing device. So what are power producing devices? So in the category of power producing devices, we have turbines. Okay, and in the category of power absorbing devices, there are a lot of them. The first one is pump, fan, on which we impart energy to fluid. Okay, that should be written. क्या करते हैं पंप में? पंप में हम फ्लूइड जो कि वाटर है उसे लेते हैं और उसका प्रेशर हेड राइज करते हैं. तो वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द पंप. No, sorry, not to the pump. We are providing energy to the water in the form of pressure head. And definitely for that we have to supply some energy, and that energy is supplied in the form of electrical work. Now there is also compressor. Compressor और pump में क्या अंतर होता है? Can you tell me? Anyone? The very first point which you will make. फ्लूइड डिफरेंट है दोनों. क्या? दोनों में फ्लूइड डिफरेंट होता है. वाटर और गैस दो. वाटर गैस होता है. Okay, so it can be said that pump handles incompressible fluid and compressor handles compressible fluid. Correct? Yeah, fluid used. Correct. So we have a compressor over here. We have a hair dryer. अगर घर की बात करें तो हेयर ड्रायर आ गया. हेयर ड्रायर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी राइज करता है. वेरी लार्ज राइज इन द काइनेटिक एनर्जी, ताकि आपके
जो वाल है वो सूख सकते हैं, आप एयर को ड्राई कर सकते हैं। फैन भी यही करता है, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। तो हर एक मशीन, पावर एब्जॉर्बिंग मशीन अलग अलग हेड इंक्रीज करते हैं। जैसे ये प्रेशर हेड इंक्रीज कर रहा है, फ्लूइड का, ये काइनेटिक हेड इंक्रीज कर रहा है, ये भी काइनेटिक हेड इंक्रीज कर रहा है, ये प्रेशर हेड इंक्रीज कर रहा है। और ये भी मेजर है, थोड़ा बहुत प्रेशर हेड में भी राइज होगा फैन के अंदर, 1.1 टाइम्स होता है अप्रोक्सीमेटली। पंप में भी वेलोसिटी में राइज होता है, ऐसा नहीं है, बट मेजरली जो हम चाहते हैं वो प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड की चेंजेस। पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस तो डेफिनेटली आपने समझा। पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो टरबाइन्स है। बेसिकली द लॉजिक इज वेरी सिंपल ओवर हियर कि यू हैव अ एनर्जी विद द फ्लूइड, राइट। अब फ्लूइड के पास कौन सी एनर्जी हो सकती है, ये भी जरा बात कर लें आज कि फ्लोइंग फ्लूइड के पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है। तो फ्लोइंग फ्लूइड के पास हो सकती है एक तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऑफ कोर्स नॉट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और क्या हो सकता है भाई, इंटरनल एनर्जी। स्टीम के जैसे बात करें तो स्टीम का स्टीम हैज अ वेरी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, राइट, प्लस प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी बोले या फ्लो एनर्जी, पीवी, ये इंटरनल एनर्जी यू, ये mgh या gh जैसा भी आपको बोलना हो, ये हाफ mv स्क्वायर, एंड u प्लस pv इज व्हाट वी कॉल्ड एज एंथैल्पी। और अगर आप देखेंगे तो स्टीम टरबाइंस तो एंथैल्पी के प्रिंसिपल पे ही काम करती है मेजरली। स्टीम टरबाइंस की बात करें, हाई एंथैल्पी फ्लूइड आता है स्टीम टरबाइन के पास, वो अपना एंथैल्पी रिलीज करता है, और वो एंथैल्पी रिलीज करता है टरबाइन को, और उसकी एंथैल्पी और फ्लूइड की एंथैल्पी कम हो जाती है, एंड दैट्स हाउ the blade of the steam turbine gets potential, they gets kinetic energy। वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम जनरेटर से लोड पे कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। So but in this session, whenever we are dealing with hydraulic machines, now what is hydraulic? Hydraulic means the one which works on the water, जो वाटर पे काम करती है, जहाँ पे फ्लूइड वाटर यूज होता है, वहां पर इंटरनल एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इंटरनल एनर्जी थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द मशीन कांस्टेंट रहती है। फॉर दैट रीजन H इक्वल टू यू प्लस पीवी, हम वहां पे एंथैल्पी की बात ना करते हुए फ्लो एनर्जी की बात करेंगे। एंड इन दिस सेशन ऑफ कोर्स वी विल बी talking about the name of the chapter would be hydraulic machines, the principles of hydraulic machines. So I'll be abstracting myself from any discussion on internal energy or steams, right? So that is a part of your thermodynamics, right? But basic principles will remain same, right? Basic principles same रहेंगे, जो मैं basic equation derive करूंगा यहाँ पर, it will remain same. So in hydraulic machines if we talk about, तो क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, और प्रेशर एनर्जी। दिस इज व्हाट वी सॉरी इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। चलिए क्विकली क्लासिफाई कर लेते हैं मशीन को। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मशीन्स, कैसे क्लासिफाई करते हैं? सो डिफरेंट कैटेगरीज है यहाँ पर। पहला तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर से मतलब क्या सर? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर से मेरा मतलब ये हुआ कि either it is power producing or it is power absorbing। ठीक सर, एक क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज।
मतलब either you are using compressible fluid or you are using incompressible fluid. अगर आप इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड यूज कर रहे हो तो ऐसी मशीन होगी आपकी, अच्छा यहां पे भी लिख देता हूं मैं नाम, ये काम आएगा आपको, टरबाइन, ये फैन, पंप, कंप्रेसर एक्सेट्रा। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को कौन हैंडल करेगा? पंप हैंडल करेगा। कंप्रेसिबल फ्लूइड को कौन हैंडल करेगा? कंप्रेसर को हैंडल करेगा। यहां पर और क्या आ जाएगा आपकी? हाइड्रोलिक टरबाइन आ जाएगी, हाइड्रोलिक टरबाइन, वाटर बेस्ड टरबाइन, वाटर जहां पे यूज होता है। यहां पर क्या आ जाएगा आपका? कंप्रेसर के साथ साथ, कंप्रेसर के साथ साथ यहां आ जाएगा स्टीम टरबाइन, स्टीम एंड गैस टरबाइन। ओके, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में एक आपका होता है रोटोडायनामिक और एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसे थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, नीचे ले चलते हैं। एक्सक्यूज मी। देखिए फ्रेंड्स, रोटोडायनामिक, दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। रोटो मींस ये वो मशीन्स हैं जिनमें रोटर होगा। रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। हर मशीन्स में रोटर नहीं होता है, बट रोटोडायनामिक जो मशीन्स होंगी उनमें रोटर होगा। अब प्लस डायनामिक वो मोशन में होगा। दैट्स व्हाट इट्स मींस इन अ लेमन टर्म। अब होता क्या है यहां पर, अभी तो मैं आपको लेमन टर्म में ही समझा रहा हूं, बट जब मैं मोमेंटम इक्वेशन डेवलप कर लूंगा आपके साथ में तो मैं थोड़ा फिजिक्स में एंट्री ले लूंगा। जब ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई विल बी डेवलपिंग द मोमेंटम इक्वेशन फॉर दिस रोटोडायनामिक मशीन, विल टॉक मोर डेप्थ अबाउट इट। अभी हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं, लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ स्कूल चाइल्ड। So what happens is that if it is a power producing device, तो fluid will come, fluid आएगा और अपनी एनर्जी रोटर को देगा और रोटर रोटेट करना चालू कर देगा। That is what it means in the simple language. But ऐसा क्या हुआ, fluid ने एनर्जी ट्रांसफर कैसे करी? That is a topic to be discussed in this course. कि how we have imparted एनर्जी टू द रोटर। ठीक है, एनर्जी है रोटर के पास, आई नो दैट, सॉरी फ्लूइड के पास, बट हाउ टू इंपार्ट दैट एनर्जी एफिशिएंटली टू द रोटर। लेट्स से फ्लूइड हैज 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, so how to deliver that 100 units of energy to the rotor would be the topic of discussion. That is what we are going to discuss in this session, in this course. Okay, what happens in the positive displacement type? Positive displacement type में you have a pressure, you have a volume, okay, and we all know that whenever we decrease the volume or whenever we decrease the volume, whenever we whenever we decrease the volume, we increase the pressure. So you decrease the volume, you increase the pressure. So that is what we call as a positive displacement. So what we are going to study in this session, ये कोर्स जो गेट के सिलेबस में है आपके, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? उसमें आपको पावर प्रोड्यूसिंग पढ़ना है, टरबाइंस। अच्छा, कौन सी टरबाइंस? which handles compressible fluid, which handles incompressible fluid, of course which handles incompressible fluid. So basically pump won't be a part of it because we have a power absorbing over here, so hydraulic machines, hydraulic turbines. Okay, next would be प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वुड बी ऑफ कोर्स रोटोडायनामिक. So this would be our domain of whatever we are going to study in this session for gate.
पंप आपके सिलेबस में नहीं है, पास्ट में आया है क्वेश्चन, तो वो इसलिए आया है क्योंकि वो पहले था, अब नहीं। Now, to understand the physics behind rotodynamic machines, let us get into the basics of mechanics. तो हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम एक बार फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं कि हम क्या समझते हैं. ये पार्टिकल है जिसकी मास m है और वेलोसिटी v वेक्टर इस डायरेक्शन, करेक्ट. और ये इसका पोजीशन वेक्टर है. इसका मोमेंटम वेक्टर भी यही होगा m into v. यस. नाउ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? देखिए ये पार्टिकल जो है ये लीनियर मोशन में है. तो चाहे ये लीनियर मतलब ट्रांसलेशन मोशन में है, चाहे ये लीनियर 1D मोशन में हो, चाहे सर्कुलर मोशन में हो, डजंट मैटर. एंगुलर होना जरूरी नहीं है एंगुलर मोमेंटम को एग्जिस्ट करने के लिए, राइट? यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस. तो अगर आप इसका मोमेंट, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज moment of linear momentum. मतलब ये r क्रॉस m. ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी फॉर अस राइट नाउ. और अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे मिलेगा dr by dt क्रॉस mv प्लस r वेक्टर क्रॉस dmv by dt. Rate of change of angular momentum, that is what I am looking for. dr by dt क्या होता है? वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी. दो वेक्टर्स जो कि सेम है, हाँ? तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि cos थीटा इनके बीच में 0, sin थीटा 0 हो जाएगा, प्लस r क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स. तो दिस इज r क्रॉस f. क्या होता है आपका? r क्रॉस f इज नथिंग बट r cross f is nothing but torque. ये तो मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा इसको फिजिकली समझते हैं. एग्जाम्पल को पुट करने से पहले थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स डेवलप कर लेते हैं, फिर एक फिजिकल प्रॉब्लम लेकर ये सारी मैथमेटिकल इक्वेशन जो लिखी है यहाँ पर हम उसे समझेंगे और रोटोडायनामिक प्रिंसिपल को भी हम अच्छे से समझेंगे. ठीक है, तो लेट अस इन्वोक रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम. दो पैरामीटर्स मास और मोमेंटम के लिए हम लगा चुके हैं, आज मैं इसे एंगुलर मोमेंटम के लिए लगा. बट बिफोर दैट एक बार इसका बेसिक फॉर्म में लिख देता हूं आपके सामने. dn by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू. व्हाट्सएप बंद करना है आपको, वो लिंक भेजना होती है इसलिए चालू करना पड़ता है. हाँ, so what is the rate of change of any extensive property in the control volume is equals to, oh sorry, for a particle is equals to, या system it is equal to, तो ये left hand side में system है, right hand side में control volume है, that's why it's a transport theorem. Rate of change of that quantity within control volume, तो उस quantity को कैसे लिख सकते हैं हम? small n into dm. dm को लिख सकते हो rho dv. ये तो क्वांटिटी डिफाइन हो गई. इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज विद इन कंट्रोल, राइट? प्लस क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है तो आप 3 इंटीग्रल लगाने में भी कोई बुराई वाली बात नहीं. प्लस
quantity out minus quantity in control surface. We have a n over here, rho v rho vector क्या v vector dot do. तो ये तो हो गया आपका मास फ्लो रेट m डॉट इनटू प्रॉपर्टी पर यूनिट मास. तो ये है आपका प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इनटू मास पर सेकंड. दिस गिव यू प्रॉपर्टी पर सेकंड, मतलब दिस इज आउट माइनस इन. हम बात कर चुके हैं ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है. डॉट प्रोडक्ट जब खुलेगा तो जो आउट होगा उसके लिए प्लस और जो इन होगा उसके लिए माइनस. जो बच्चे नहीं थे अगर इस लेक्चर में भी, जिसने ये नहीं समझा तो डोंट वरी, 5 मिनट बाद मैं इसको एक सिंपल इक्वेशन में डिराइव कर दूंगा. आप वो इक्वेशन भी अगर समझ गए तो भी बहुत है. ठीक है. अब मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होने वाली है. मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होने वाली है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज m r क्रॉस v. दैट इज व्हाट वी हैव डिफाइंड. और मेरा स्मॉल n क्या होगा. तो मेरा n यहाँ पे वेक्टर है और स्मॉल n मेरा हो जाएगा r क्रॉस. ओके फ्रेंड्स. तो लेफ्ट हैंड साइड रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस n है मेरा एंगुलर मोमेंटम. क्या हुआ इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टॉर्क हुआ. यहाँ पे लिख दीजिए आप टॉर्क. इक्वल ये वाली क्वांटिटी क्या होगी. रेट ऑफ चेंज ऑफ, चलो मैं पहले मैथमेटिकली लिख देता हूँ. डेल बाय डेल टी कंट्रोल वॉल्यूम r क्रॉस v रो dv. तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद इन कंट्रोल वॉल्यूम. ये क्या लिखा है. एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास की क्वांटिटी और ये मास डिफरेंशियल मास. तो ये डिफरेंशियल एंगुलर मोमेंटम होगा. इसको इंटीग्रेट करोगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा. एंगुलर मोमेंटम का टाइम रेट लोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंट्रोल वॉल्यूम का और प्लस. तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये पूरी की पूरी वेक्टर इक्वेशन है क्योंकि टॉर्क भी वेक्टर है आपका. अच्छा ये क्या लिखा है. ये लिखा है एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास मल्टीप्लाई बाय मास पर यूनिट टाइम. दैट इज मास से मास कटा, ये एंगुलर मोमेंटम पर सेकंड हो गया. मतलब दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम आउट माइनस एंगुलर मोमेंटम अब अगर हम कुछ असम्पशंस लें और इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करें तो असम्पशन ये होगा मेरा. देखिएगा अगर रो कांस्टेंट है क्योंकि हम हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ रहे हैं राइट, तो सुनते जाइएगा. तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ our problem in hydraulic machines, पहला तो हम ये assumption लेते हैं कि हम स्टेडी स्टेट पढ़ रहे हैं, मतलब ट्रांजिएंट स्टेट नहीं पढ़ रहे. शुरुआत में स्टेडी स्टेट समझें. अगर टरबाइन ऑपरेट करती है तो डेफिनेटली शुरुआत में ट्रांजिएंट स्टेट होती है, बट पीरियड ऑफ टाइम इट अचीव्स अ स्टेडी स्टेट. As a beginner, we'll start with a steady state. Okay. Maybe later on, if you opt for a higher courses in machines or fluid mechanics, you might get a chance to do a transient analysis also. Okay. Second would be
incompressible fluid we are handling, so it would be incompressible. Okay. Third, I'll say that you can assume that velocity जो आ रही है अंदर और जो बाहर जा रही है, they all are uniform, है ना? तो velocity भी uniform, मतलब हम प्रोफाइल अज्यूम नहीं कर रहे हैं, velocity is uniform. मैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि जेट आ रहा है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, चलो ये ब्लेड पे जेट आ रहा है, तो ये जेट की पूरी थिकनेस होगी, तो रियलिटी में ये जेट की वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसे वेरी करेगी, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इस वेरिएबल को हम इसकी एवरेज से रिप्लेस कर रहे हैं, यूनिफॉर्म, ठीक है? तो ये सेक्शन पे यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पर टाइम के साथ चीजें चेंज नहीं, सॉरी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर यहाँ पर चीजें चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर हो सकता है वेलोसिटी चेंज हो जाए बट रहेगी यूनिफॉर्म, एवरेज ले लेंगे उसका. तो डेफिनेटली फिर उस केस में क्या होगा, ये आर और वी बाहर आ जाएंगे और रो भी बाहर आ जाएगा और अंदर मास फ्लो रेट बन जाएगा या डिस्चार्ज बन जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी कैन वेरी इजीली राइट दिस इक्वेशन, क्योंकि ये वाला पार्ट भी आपका जीरो हो जाएगा ना स्टेडी स्टेट में. स्टेडी स्टेट में ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा. आपकी इक्वेशन बन जाएगी रिजल्टेंट टॉर्क एंगुलर मोमेंटम आउट माइनस एंगुलर मोमेंटम आउट. और इसकी मदद से हम एक्चुअली में बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं. तो लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड जो भी मैथमेटिक्स हमने पढ़ा उसका फिजिक्स समझते हैं. एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक, इससे पहले आगे बढ़ूं मैं तो एक बार हम फैन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, राइट? और एक मिनट और रुक जाओ, उससे भी पहले एक काम और कर लेते हैं, एक इक्वेशन और लिख देता हूँ. देखो मैंने आपसे क्या कहा कि ये टर्म तो जीरो हो गई आपकी, तो इसको तो हटा दिया आपने. अब रो बाहर ले लेते हैं, रो आर क्रॉस वी बाहर आ जाएगा आपका, क्या लिख देता हूँ, रो बाहर आ जाएगा, आर क्रॉस वी बाहर आ जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म है वेलोसिटी फील्ड. और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका डिस्चार्ज. ये डिस्चार्ज ही तो है वी वेक्टर डॉट डी है, तो ये डिस्चार्ज है. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपने यूनिफॉर्म अज्यूम किया है तो, और इनकंप्रेसिबल अज्यूम किया है तो, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेंसिटी को बाहर ले लिया आपने, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी को बाहर ले लिया आपने, और वी वेक्टर डॉट डी ए आपका इंटीग्रेशन डिस्चार्ज आएगा, तो ये डिस्चार्ज. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. तो मैं एक इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस के साथ आउट माइनस रो आर क्रॉस वी क्यू के साथ इन. ठीक है, चलिए इसको हम वहां लिख देते हैं. एक मिनट दीजिएगा मुझे. एक्सक्यूज मी. तो हम कहाँ थे, एंगुलर मोमेंटम आउट माइनस एंगुलर मोमेंटम. तो
बेसिकली दिस इज एंगुलर मोमेंटम आउट माइनस एंगुलर मोमेंटम। ठीक सर, एक और बात बस, उसके बाद फिर हम एक प्रॉब्लम को फिजिकली अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब फिजिकली मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ रिलेट करेंगे, तो चीजें काफी आसान होगी उस टाइम पे समझ। ऑब्जर्व फैक्ट, ये ऑब्जर्विंग फैक्ट। तो पहली चीज हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलता है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण मैं लिख सकता हूं उसका डी ओमेगा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। करेक्ट। अब हम जानते हैं t इक्वल टू आई अल्फा होता है, टॉर्क रिजल्टेंट टॉर्क, दिस इज रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। Now the question comes into the mind of student that फिर भी सर हमें करंट क्यों पास करना पड़ रहा है? तो द वेरी सिंपल आंसर टू इट इज कि सर रिजल्टेंट टॉर्क जो है आपका, ये रिजल्टेंट मतलब ये जो पार्ट है ये रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है। मतलब ये रिजल्टेंट टॉर्क जीरो कैसे हुआ? ये जीरो ऐसे हुआ कि जो आप सप्लाई कर रहे हो बेसिकली वो पूरा का पूरा रेजिस्ट करने में लगा। व्हाटएवर यू आर सप्लाइंग, आपने देखा कि जब भी कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव करेगी तो उसके ऊपर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ड्रैग लगेगा और विस्कस फोर्सेस के कारण ड्रैग लगेगा। तो दो कारणों से उसके ऊपर ड्रैग लगेगा, बिकॉज इट इज हैविंग सम वेलोसिटी इन फ्लूइड, इट इज बेसिकली कटिंग द फ्लूइड, सो फ्लूइड विल अप्लाई सम shear stresses on the blade or on the skin of the fan, which will lead to drag forces, and because of this drag forces there will be resistance which will be opposing the flow, opposing the motion of the fan. Therefore we have to supply an equal and opposite amount of torque to maintain its motion. तो यहाँ पे T resistance आ जाएगा। This all thing is zero. Okay. Now तो अब हम इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। सप्लाई माइनस रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो, इतना समझ में आ गया। और अगर रेजिस्टेंस होगा ही नहीं तो सप्लाई आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विच इज ऑफ कोर्स एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। चलिए एग्जांपल लेते हैं। The most common example everyone might have seen somewhere in their lifetime, और इससे पूरा फिजिक्स समझते हैं। ये 3D में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका। ओके, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज अ पाइप। पाइप में से पानी यहाँ से अंदर से आ रहा है ग्राउंड से कहीं तो भी। It is getting distributed into two arms, and this guy is rotating. This sprinkler arm is rotating, right? It can rotate about this. So ये कुछ ऐसे भी रोटेट कर सकता है, इसकी रोटेशन की डायरेक्शन हमें समझना पड़ेगी। इसका टॉप व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, it would look something like this. Just a minute, guys. इसकी वर्किंग को अगर समझें कि घूम कैसे रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्या हो रहा है इसके पीछे, पूरा लॉजिक। तो चलिए देखिए, फ्लूइड है, ब्लू कलर से जो बना है फ्लूइड, फ्लूइड ऐसे जा रहा है। अब किसने इसका रास्ता बदल दिया? ये जो पाइप है ना, ये पाइप ये ऐसा जा रहा था, पाइप ने इसका रास्ता इधर कर दिया। मतलब पाइप ने पानी पे इधर फोर्स लगाया, तभी तो वो इधर गया। इधर आती हुई कोई बॉडी अगर इधर जा रही है, मतलब पाइप ने भी इधर फोर्स लगाया होगा इसी किसी डायरेक्शन। तो पाइप ने पानी पर फोर्स लगाया इस तरफ, तो पानी पाइप पे फोर्स किधर लगाएगा? एज अ रिएक्शन फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ, पीछे की तरफ। तो दिस इज अगर मैं यहां पर बनाऊं तो देयर इज अ फोर्स ऑन वाटर बाय पाइप and there is a force by pipe on water, a force
ऑन पाइप, है ना। तो ये फोर्स जो है ये पाइप के ऊपर, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली यहां से पानी इस तरफ बाहर निकला, तो पानी जब इस तरफ बाहर निकला होगा तो डेफिनेटली ये वाटर पे फोर्स लगा, और फोर्स ऑन वाटर बाय पाइप। So just an equal or opposite escape. There is a force on pipe, force on pipe. तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पाइप पे लगने वाले फोर्स बताऊं, एक तो ये रहा, and now even a school child can tell you that because of these forces there will be rotation in this direction. This guy will rotate like this, rotate. पानी ऐसे बाहर निकल रहा है और ये उल्टा रोटेट कर रहा है, of course. Basically it is based on Newton's third law, reaction principle. Every action is equal in opposite direction. That is a simple logic of it. कैसे ये राउंड स्प्रिंकलर काम करता है. That's how you can explain it to the student. या फिर एक बात और अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली हुआ क्या, देखिए, let us understand what happened, what actually happened. Let us understand. एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से समझते हैं इसको तो ज्यादा अच्छे से. There was a water flowing like this. इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अभी ये रहा इनिशियल, करेक्ट, वाटर. What is this linear momentum about origin, about the axis of rotation? क्या है linear momentum origin के about इसका initially? Zero. Of course it's zero. Correct sir, zero. क्योंकि ये momentum vector यहीं से पास हो रहा है. अब क्या हुआ, इसका linear momentum पानी ने, पाइप ने चेंज कर दिया और ऐसा कर. तो जब इसका linear momentum चेंज हुआ एक्चुअली में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट भी चेंज हुआ. Are you getting that? अगर आप यहां पे देखें, अगर इसकी वेलोसिटी में कहूं कि यहां पर भी v थी और यहां पर भी v है, मतलब यहां पर लीनियर मोमेंटम की वैल्यू m डॉट v है, मैग्नीट्यूड देखो आप, तो यहां पर भी mv है और यहां पर भी mv, बट फिर भी मोमेंटम चेंज हुआ है. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज. अब डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या हुआ, पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ है. दो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू अभी भी सेम हो सकती है, वैल्यू सेम हो सकती है, बट लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हुई. और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होने के कारण अब एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है पॉइंट O के पास. दोनों तरफ सेम स्टोरी. दैट विल क्रिएट अ रोटेशन. So that's why there is a rate of change of angular momentum is taught. Earlier it was zero, now it is having some finite value. So this is what is physically mean by this, and that's why this type of machines, this is the first type of reaction machine. कल पूछा था ना मैंने आपसे, ये reaction machine, because it works on a reaction principle, equal and opposite Newton's third law. Okay. चलिए एक सिस्टम लेते हैं, एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल केस अज्यूम करते हैं, है ना. गेट का क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं. एक टॉप व्यू दिखा रहा हूं. ये क्या है, दोनों तरफ एक जैसा. हाँ ठीक है, पानी यहां से बाहर निकल रहा है और यहां से भी बाहर, नीचे से आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा नीचे से, जैसे यहाँ पे व्यू है वही व्यू है, पानी नीचे से आ रहा होगा और दोनों तरफ से निकल रहा है. प्रॉब्लम समझिएगा क्या. अब मतलब फोर्स पाइप पे कहां लगा, पाइप पे फोर्स तो सर इधर लगेगा, दोनों तरफ इधर लगेगा. मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे. अगर ये रेडियस लेट्स से r1 और ये r2,
अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है? ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हुआ, अभी बताया था। मतलब ना तो आप कुछ सप्लाई कर रहे हो, सॉरी रिजल्टेंट ऑफ जीरो हुआ है ना। और एक क्वेश्चन में ये भी पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कि सप्लाई जो है आपका वो जीरो है, सप्लाई जो है वो, सॉरी सप्लाई जीरो नहीं, रेजिस्टेंस जीरो, नेगलेक्ट फ्रिक्शन, नेगलेक्ट फ्रिक्शन एंड तो ये क्वांटिटी आपकी जीरो हो गई रेजिस्टेंस वाली, क्योंकि नेगलेक्ट करना है आपको फ्रिक्शन और ड्रैग। और यहाँ पर देखो आप, तो सप्लाई भी जीरो हो गया, मतलब ये जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है यहाँ से, इसके कारण जो टॉर्क जनरेट हो रहा है कितना हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, और इसके कारण से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं दूसरे, तो सप्लाई भी जीरो है। बट इनिशियली ये किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, लेट अस से दैट इट इज रोटेटिंग एट सम एंगुलर वेलोसिटी, तो पहले से ही घूम रहा है, अभी पहले से ही किसी एंगुलर वेलोसिटी पे घूम रहा था, और रेजिस्टेंस भी नहीं है, और चूंकि सप्लाई भी कुछ नहीं है, क्योंकि क्यों सप्लाई नहीं है, क्योंकि सप्लाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं दूसरे को, तब जाके सप्लाई नहीं है। तो आपको ये निकालना है इसकी स्टेडी स्टेट एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, ओमेगा क्या होगा। मैं डेटा दे देता हूँ आपको, R1 है 10 सेंटीमीटर, R2 है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो डिस्चार्ज आया है यहाँ पर अंदर Q 1 लीटर पर सेकेंड आया, और यहां से जो बाहर निकला वो इक्वल निकला, Q/2 Q/2। और ये ओमेगा आपको निकालना है कांस्टेंट, एरिया दिया हुआ है आपको, सॉरी ये एरिया दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर आप अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स कर सकते हो, जो फिक्स्ड है एक्स वाई, हिंट दे रहा हूँ, ये ओरिजिन है। हिंट करने, सॉल्व करने के लिए आप इसे यूज करें, और इसे यूज करने के लिए एक बात जरूर ध्यान रखें आप, जब आप इसे यूज करते हो है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो वेलोसिटी है ये कहाँ से मेजर होगी, जिस फ्रेम में आप बैठे हो वहां से। और आपकी फ्रेम जो मैंने आपको बताई ये लेना है वो रेस्ट पर है, भले से ये रोटेट हो रहा है बट ये तो रेस्ट पर है, आपने ओरिजिन रेस्ट पर रख रखा है, ये रोटेट हो रहा है, होने दो, आपके ऊपर है आपको फ्रेम रेस्ट पे लेनी है कैसे लेनी है, तो आपको वेलोसिटी यहां से लेनी है, ठीक है। और डिस्चार्ज दिया, याद रखें एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो गलती कर सकते हो आप, जो डिस्चार्ज है और जो एरिया है, अगर डिस्चार्ज और एरिया से वेलोसिटी निकालोगे आप, तो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगी कि रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि क्यू होता है एरिया इनटू रिलेटिव, ठीक है। तो इसे जरा ट्राई करें आप, और अगर आपको ये इक्वेशन भी लिखनी होती है, ये दिख रहा है आपको क्लियरली, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। एक काम करते हैं, टेम्पररी एग्जाम हियर फॉर, टेक योर 5-7 minutes एंड अटेम्प्ट करें।
10 to the power -3 रेडियन पर सेकेंड। नहीं यार दोस्त, 10 रेडियन पर सेकेंड है इसका आंसर, 10 रेडियन पर सेकेंड। टेन आया, करेक्ट। एरिया गलत लिया क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ले लिया था एरिया। चलिए देखते हैं कैसे किया आपने। देखिए अब बात करते हैं रिजल्टेंट टॉर्क की। तो रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड टर्म तो आपकी जीरो होगी। आउट माइनस इन देख लेते हैं। अब यहाँ पर इन जो है आपका वो इस पॉइंट से आ रहा है, करेक्ट। अब चूंकि इस पॉइंट से आ रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि फ्लूइड की वेलोसिटी जरूर होगी इस पॉइंट पर, मोमेंटम जरूर होगा, बट वो पॉइंट के अबाउट ही तो आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो, तो उस पॉइंट के अबाउट आपका लीनियर मोमेंटम का मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इन इज जीरो इन दिस प्रॉब्लम, व्हाटएवर इज देयर इट्स आउट। तो चलिए देखते हैं रो आर क्रॉस पी। तो ये आपका रेडियस वेक्टर है यहां से यहां तक। वैसे टेक्निकली तो आपको ये लेना चाहिए आर वेक्टर, समझना, क्योंकि यहां से बाहर निकल रहा है, और ये वेलोसिटी वेक्टर, करेक्ट। बट इसको अगर आप नेग्लिजिबल लेंथ का मानो क्योंकि आपको दिया नहीं है, तो देन यू कैन अज्यूम दिस आल्सो एज योर आर। सो दिस इज योर आर वेक्टर, r1 vector, and this can be assumed as your velocity. This is your velocity. इसे हम एक काम करते हैं, साइड 1 कह देते हैं, इसे साइड 2 कह देते हैं। तो ये v1 है। ये v1 किसकी वेलोसिटी है? जेट की वेलोसिटी है। कहां से? ग्राउंड से, रेस्ट पे से, इनर्शियल फ्रेम में से, ओके। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी v1, क्योंकि मैं जो भी वेलोसिटी लूंगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लूंगा, क्योंकि मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। अब r क्रॉस v कैसे करोगे? दोनों वेक्टर्स की टेल को जोड़ लो। r क्रॉस v अंदर की तरफ आ रहा है, इसका रोटेशन भी अंदर की तरफ है, तो एक काम करते हैं, माइनस के कैप को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो r क्रॉस v गोइंग डाउन अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया, तो इसको सीधे vr लिख सकते हैं, vr1 v1 r1 इंटू q माइनस, सॉरी प्लस, आउट वाला लिख रहे हैं ना, माइनस तो गया, जीरो हो गया रो। इसको कैसे लिखोगे? ये r2 वेक्टर हो गया आपका, और ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। r क्रॉस v बाहर की तरफ, r क्रॉस v बाहर की तरफ, r क्रॉस v बाहर की तरफ, तो ये r2 v2 माइनस आएगा कि हमने अंदर पॉजिटिव मान, और डिस्चार्ज है यहाँ पे q/2, तो यहाँ पर भी q/2। रो क्यू कैंसिल, 2 भी कैंसिल, तो आया आंसर आपका r1 v1 इक्वल टू r2 v2। बट अभी चैलेंज ये v1 और v2 कैसे करना, that could be a topic of discussion.
उस पर फोकस करते हैं, V1 V2 क्या है। गलती बच्चा बस यही करेगा, ठीक है। जस्ट टू रिमाइंड यू, V1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी फ्रॉम फ्रेम XY। XY कौन सी फ्रेम है? ये वाली जो कि रेस्ट पर। अब एक काम करते हैं, डिस्चार्ज दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो इट मस्ट बी वेरी टेम्पटिंग फॉर अस टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी, करेक्ट, और द वेलोसिटी। तो वी नो दैट वेलोसिटी डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी होगी ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी, मतलब ये कौन सी वेलोसिटी होगी यहां पर? ये वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू आर्म होगी, नॉट द वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से जब वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू आर्म आप निकालोगे, वो आएगी q बाय, वेयर q इज q बाय 2, q is equals to q by 2 just. What is velocity of jet with respect to arm? This is velocity of jet minus velocity of arm. Velocity of a with respect to b is velocity of a minus velocity of b. Of course these are vectors. Next, what is the velocity of jet? This is velocity of jet with respect to ground minus velocity of arm with respect to ground, to be more precise. What is velocity of jet? Let's say अगर मैं वन साइड पे करूं इसे, तो इसे अब दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले वन के लिए करते हैं, तो v1 माइनस, ऊपर को पॉजिटिव मान के करना है आपको, कि आपने वेलोसिटी ऊपर मानी है। वेलोसिटी ऑफ आर्म, अब आर्म कैसे जा रहा है आपका? ये देखिए, ये रोटेशन की डायरेक्शन है, तो ये वाला पार्ट आपका कैसे जा रहा है? ऊपर ही है, तो आर्म की वेलोसिटी भी ऊपर ही है। तो वेलोसिटी ऑफ आर्म कितनी होगी? ओमेगा r1 इक्वल टू q बाय 2 के लिए लिखोगे तो कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ जेट क्या है 2 पर? v2, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जेट की। अच्छा, अब आर्म किधर जा रहा है? यहाँ पर आर्म इधर जा रहा है, ये आर्म है, ये आर्म की डायरेक्शन नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस आर्म की वेलोसिटी कितनी है? wr इक्वल टू दो माइनस आएंगे, माइनस और एक माइनस, यहाँ पे W1 आएगा आपका q बाय 2 है प्लस W। q बाय 2 है प्लस WR1 इक्वल टू q बाय, यहाँ पे लिख देते हैं R1 V1, नहीं ये प्लस नहीं आएगा, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, आई एम सॉरी, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, तो q बाय 2 है प्लस WR1 इक्वल टू R2, q बाय 2 है माइनस WR। You have to solve this. सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है। सॉल्व करो, सॉल्व दिस पार्ट, बताओ आंसर। हेमंत यही करा तुमने? क्या किया बताओ सर, व्हाट यू हैव डन, टेल मी। हाँ सर यही किया था। यही किया था, इक्वेशन भी यही बन रही है एट द एंड? हाँ सर, मैंने इतना लिखा नहीं सर, मैंने देखा कि सब तो जीरो हो रहा है, तो आउट में टॉर्क का फर्क देख लो, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम का, तो फिर सीधा लिख दिया था मैंने। सर वो तो आपने क्लू दे दिया था, वरना क्लिक नहीं हुआ था वो कि u माइनस वी और u प्लस वी लेना है करके, वो सूझा ही नहीं था।
हाँ बस इस प्रॉब्लम में यही है, बस मेन चीज यही है कि ये क्लिक हो जाना चाहिए बच्चे को, बट ठीक है फिर भी उसके बाद भी कर लिया वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। तुम पक्का टॉप रैंक ला सकते हो, मतलब टॉप 100 भी नहीं, टॉप 10 में आ सकते हो, मैं पहले ही कह रहा हूँ। बहुत कम बच्चे हैं ऐसे। कौन सी ईयर है तुम्हारा अभी? थर्ड ईयर सर, थर्ड ईयर। तुम पढ़ते रहो बस थोड़ा थोड़ा, 2 घंटे दिन में, इससे ज्यादा भी नहीं, 2 घंटे दिन में पढ़ते रहो, बाकी जो करना है करो। ऑल इंडिया टॉप रैंक पक्की है तुम्हारी 2022 में, अगर सब कुछ गेट और सब कुछ वैसा रहता है तो जैसा चल रहा है। एग्जाम भी तो होना चाहिए उसके लिए। क्या क्लास के टॉपर हो आप कि नहीं हेमंत? सर ये सेम तो आए हैं नंबर, यूजुअली तो सर नहीं। टॉपर है सर, टॉपर है सर हर सब टाइम। कौन टॉपर है? हेमंत टॉपर है कि ऋतिक? हेमंत सर, हेमंत सर, सर हर टाइम 9:30 के ऊपर। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, अच्छा है। बस ऐसे जो स्टूडेंट्स है ना, हेमंत और बाकी सभी लोग ऑलमोस्ट आप एक जैसे ही हो, ठीक है, तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट लाइक स्टूडेंट्स लाइक यू थोड़ा सा एक हल्का सा ओरिएंटेशन चाहिए आप एक टीचर की तरफ से, कि बस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, बस इतना बता दिया जाए ना तो आप लोगों के लिए बहुत है। बाकी यू आर मतलब सेल्फ, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ, इतने हजारों बच्चे कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, और अब तो ऑनलाइन के चक्कर में तो इस साल ही कितने बच्चे पढ़ा दिए। बताओ आंसर क्या है इसका, जल्दी से सॉल्व करो। अच्छा हो ना, तब तक एक रोटर की जुगाड़ कर लेते हैं, सॉल्व करो। हाँ जी, आ गया आंसर, बताओ यार क्या आंसर आया। व्हाट इज योर आंसर? टेन आया, ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन। ओके ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करने का प्लान है हेमंत आगे तुम्हारा? क्या सोचा है? क्या करना है जिंदगी में? कुछ तो सोच रहा होगा। सर अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट गेट तो देना ही है। गेट देना है, ठीक है। गेट तो एक रास्ता है बस कि आपको आई थिंक पीएसयू ज्वाइन करना है या आईआईएससी जाना है या आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो क्या मतलब या विदेश जाना है? सर नहीं, विदेश तो नहीं जाना है सर। विदेश तो नहीं जाना है। और आई आई पीएसयू या आईआईटी या हाँ सर, वही पीएसयूज तो ऐसे ऐसा आइडिया नहीं है, बट कॉलेज में सर प्लेसमेंट्स तो अच्छे हो जाते हैं काफी। कितने अच्छे तो होते हैं इसमें कॉलेज में? क्या पैकेज ज्यादा है तुम्हारा? प्राइवेट सर जॉब मिलती है कॉलेज में? हाँ सर, प्राइवेट नहीं, मतलब प्लेसमेंट्स 6 तक जाते हैं सर। एवरेज एवरेज मतलब एवरेज हाँ? सर, अच्छा एवरेज है वो। एट सभी को 6 ही मिलते हैं usually। ऐसा नहीं कि वो सीएस वाला एवरेज है। तो 1-2 साल, मतलब मैं अभी बात कर रहा था कुछ लोगों से, तो वो वैसे ही कहते हैं कि 1-2 साल एक्सपीरियंस करो, फिर तुमको आइडिया आएगा तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, तुम्हें नहीं पसंद आ रहा। हाँ, तो वो मैं तुमको उसको इस तरह से समझाऊंगा कि व्हाट यू शुड डू इज गेट अ गुड रैंक एंड रादर देन वर्किंग फॉर प्राइवेट कंपनी एट अ 6 लाख रुपीस, इट्स बेटर टू वर्क विद अ पब्लिक सेक्टर्स एट सही है सर। लाख रुपीस 15 लाख रुपीस काइंड ऑफ। हाँ जैसे सर, वो भी सही बात है। एनटीपीसी है, आप वहां पर एग्जीक्यूटिव हो ना, आप सीधे सीधे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। अभी एक स्टूडेंट मेरा जस्ट उसने अभी आईआईएससी ड्रॉप किया उसने और शायद एनटीपीसी ज्वाइन किया। तो मतलब आप देख रहे हो कि अब बताता है ना वो कि सर खतरनाक है। अभी तो खैर वो क्वारंटाइन में था, वहां पे 10 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा गया जो नए ट्रेनिंग आए हैं उनको। बट द पॉइंट इज कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पीएसयू एंड अ प्राइवेट कंपनी। व्हेन यू विल गो यू रियलाइज ओवर देयर। अभी आपको क्या लगता है, देखो ये तो हमेशा रहेगा कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हो, लाइक आई started my private company career in 2011, right? When I was in Bosch. स्टार्ट मेरा वहीं से हुआ था। तो दुनिया के लिए भली से आप बोलते हो कि यार नहीं, जैसे मैं नासिक में रहता था उस टाइम पे, तो नासिक में बॉश बहुत पुरानी है, माइको है ना, तो वहाँ पे लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं बॉश के एम्प्लॉइज को। मतलब रिस्पेक्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि भैया बिल्कुल हाथ पांव जोड़ते हैं, बट एक आप अगर आप किसी को कहते हो कि यार मैं माइको में जॉब करता हूँ, तो वो आपको एक समझते हैं कि चलो आपको घर लेना हो, आपको कुछ काम हो, आप कुछ बाहर का बंदा है आया है, तो वो हेल्प कर देते हैं कि चलो ये माइको का है। तो वो चीज है। अंदर जाते हो तो आप क्या हो, यू आर एट द लोएस्ट पोजीशन, यू आर जस्ट अ ट्रेनी ओवर देयर। मतलब मैकेनिकल में तो जो वो होते हैं ना ऑपरेटर्स, वो भी आपसे एक तरह से सीनियर ही होते हैं। क्योंकि माइको में तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे तो ऑपरेटर्स भी इतने रिच थे कि शायद कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स भी नहीं थे। तो वो लोग, उनकी अलग ही एक अपनी यूनियन थी और वो अपने अलग ही स्टाइल में काम करते थे, और आपको उनसे काम कराना है सबसे बड़ा चैलेंज। जो आपसे उस फैक्ट्री में जहाँ वो बड़े हुए हैं, जहाँ उन्होंने सब कुछ देखा है, उनसे आपको काम करना है। ठीक है, मैं उन चैलेंजेस से डरा नहीं रहा हूँ आपको, ये तो हर जगह होता है। बस बात ये है कि दिस इज अ साइड ऑफ अ प्राइवेट जॉब। फिर आप यू विल वेट फॉर फॉर कि जो भी होता है ना कि आपका क्या बोलते हैं इसको, अरे तरक्की को क्या बोलते हैं, प्रमोशन एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर उसके बाद गवर्नमेंट में क्या रहता है कि पैकेज अच्छा है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिलती है सीधा, और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो वो जॉब कर पाते हैं। तो हर कोई एनटीपीसी, हर कोई गेट में टॉप 100 रैंक नहीं लेकर आता है। 100 रैंक आ रही है मतलब 100 ही लोग हैं ऐसे जो टॉप 100 में आ रहे हैं। 200-300 लोग हैं तो हिंदुस्तान। और प्राइवेट कंपनी में 10,000, 20,000, 50,000 लोग एवरी ईयर।
I'm getting this. So आपका क्लास अलग हो जाता है, आप एक अलग क्लास में चले जाते हैं. That makes a difference. There is no point of comparing the thing because अब PSU में ये भी होता है कि particular PSUs particular locations पे है, आपको वहीं जाना है. जैसे I think जो भी स्टूडेंट गया वो छत्तीसगढ़ गया. He was saying that although it is छत्तीसगढ़ में कोई बुराई नहीं है, but वही महाराष्ट्र ही था, अमरावती से था. But the land and everything, the resources, whatever they are giving to them is beautiful, just wonderful. So there is a big difference, like between a public sector unit and a private job. So at least students like you all should not get satisfied with the private job at this point of time. वो उनके लिए है जो ठीक है, जिनको अब देखो यार दोनों में कोई बुराई नहीं है. जिनको लगता है नहीं यार मैं तो उससे में ही सेटिस्फाइड हूँ, आई वांट टू बी, मेरे को 6 लाख का पैकेज मिल रहा है प्राइवेट में, ठीक है, डराते घिसते 5 साल. मेरे साथ में जितने भी लोग प्राइवेट में लगे थे ना, वॉश में 2011 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, करंटली वो लोग 17-18 लाख रुपीस के पैकेज पे हैं. सोच लो, अच्छी पोस्ट है, पैकेज इतना ही, और पक्ष कोई बहुत ज्यादा नहीं. मैं मारुति की बात कर लेता हूँ, मेरे साथ वाले मारुति में है, वॉल्वो में है, कोई सूर्या बल्ब में है, सब अलग अलग जगह, कुर्बान में है, ठीक है. तो ऐसा चीज के कोई बहुत हाइक नहीं होगा सैलरी पर, ठीक है. कुछ एक दो लोग चले गए जर्मनी प्राइवेट जॉब से, वो बात अलग है, वो एक्सेप्शन है. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. इतना कोई बड़ा एक्सेप्शन वो नहीं है. अगर आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है, बहुत मेहनत करे 1.5 साल, क्योंकि इसमें भी मेहनत करना पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं तो ही रिजल्ट मिलेगा, तो इट्स फाइन. और आपको लगता है कि नहीं यार मैं मेहनत नहीं करूं, मेरा ऑलरेडी लग जाएगा 6 लाख रुपीस के आसपास का पैकेज, वो भी लाइफ चिल है. पूरा तो किसी में भी नहीं है, तो आपके ऊपर है आपको किस लेवल पे जाना, कितना आपको अलग होना है. वहां पे भी जाओगे आप, प्राइवेट में भी जाओगे आप. अब बाहर वालों के लिए आप हो सकता है एनटीपीसी में जॉब करते हो, और अदर्स यू माइट बी एन एनटीपीसी एम्प्लॉय. जब बाहर निकलोगे दुनिया में, किसी को भी अपना कार्ड दिखाओगे, तो डेफिनेटली पीपल विल गिव यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि आप सब कॉर्पोरेशन में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉय, दैट टू एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट. अंदर जाओगे तो वहां पर आप सबसे उसमें जाओगे, और वहां का एक्सपीरियंस बहुत रॉक सॉलिड है. एनटीपीसी में तो बच्चे भैया ऐसा सुना है मैंने कि लोग सिर्फ ट्रेनिंग करने जाते हैं वहां पर, 1.5 साल की ट्रेनिंग करके आते हैं, बिल्कुल 5 स्टार ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल 5 स्टार ट्रेनिंग, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, जिसको बोलना चाहिए, पूरी वैसी. चलिए नेवरदलेस, तो कोशिश करिए कि आप सभी लोग अच्छी रैंक आए, आपकी टॉप 500 टॉप 100 स्लोली एंड स्टेडीली आएगी. एकदम तो मैं भी नहीं कहता कि कल ही आ जाएगी, आपकी अगले में आ जाएगी, बट आ सकती है, ये बात पक्का है. अब तो हर स्टूडेंट की सकती है, आपके साथ चांसेस ज्यादा है. अब मैं यहाँ पर आपको क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए. उस डायग्राम पर भी आते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंट. और एक बार टाइम निकल जाता है ना, तो फिर वो वापस नहीं आता है. जैसे आप सोच रहे हो ना कि 2 साल आप जॉब करके देख लेते हैं प्राइवेट में, फिर देखेंगे क्या करना है, वो डिले हो जाता है. जॉब करनी है तो अभी करो विद द गेट, जो करना है अभी करो. हाँ, अगर हायर स्टडीज करनी है तो आप अभी ब्रेक ले सकते हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 साल 3 साल एनटीपीसी में काम किया, फिर कैट दे दी, आईआईएम चले गए, आईआईएम से एमबीए, फिर अलग ही निकल जाते हैं. समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो जाता है. फर्स्ट यू आर अ टॉपर गेट, देन पीएसयू, दैट टू अ वेरी महारत्ना, एंड आफ्टर दैट आई, तो फिर आप बहुत बड़ी मैनेजरियल पोस्ट पे चले जाते हो. फिर आपका जब रिक्रूटमेंट होता है ना नेक्स्ट टाइम, दैट टेक्स यू टू अ बिग प्लेस. मतलब जो बंदा, अगर आप कंपेयर करो, अगर आपका एक जो कॉलेज से 6 लाख का पैकेज लेके निकला, ये एक एवरेज जॉब, एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ ना, ये वो है. और ये बंदा वो है जो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो 300 रैंक लाया गया, और 300 रैंक लाने के बाद अगर आप ग्राफ देखो, ऐसे ग्राफ से समझना है, ठीक है. तो मान लो चलो एक इसका तो अभी लग गया 3rd ईयर, ये तो 4th ईयर में पास हुआ, इसका निकल गया, और आपकी भी जॉब लगती, तो मैं तो ना कहूंगा कि आप जॉब छोड़ो. अभी जिस स्टूडेंट का बता रहा हूँ मैं आपको, उसको मैंने बहुत स्ट्रिक्टली कहा था, वो कह रहा था सर अब मैं मेडिसी जा रहा हूँ दिल्ली पढ़ने के लिए. वो उसका महिंद्रा में लग गया था, उसका भी 6 लाख का पैकेज था, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज अमरावती से था. मैंने सोचा कि भाई जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.
बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, महिंद्रा में जॉब लगी वहाँ चले जाओ। वहाँ गया, अपनी प्रिपरेशन करी अपने हिसाब से, जैसा उसको सही लगा करी, पर उसने ये बात था कि उसने बात सुन ली, कर ली, इतना कर लिया बस। मेरा बस इतना ही कहना था, वहाँ मत जाओ, अब निकाल लिया। तो आप अगर ग्राफ वाइज देखो तो अगर आपकी गेट में रैंक आती है और गेट में रैंक लाने के बाद अगर आप समझो आप किसी पीएसयू में जॉब करते हो और पीएसयू में जॉब करने के बाद अगर आप कुछ नहीं भी करते हो तो भी आप 3 साल बाद अगर देखोगे ना तो कम से कम ये इतना गैप रहेगा 3 साल ये आफ्टर 3 इयर्स बता रहा हूँ, इतना गैप रहेगा इस बंदे का बस बोलते हैं। इनफैक्ट ये भी कम होगा और हो सकता है कि ये कुछ इस तरह के बायोकेमिकल चीजें वापस अगर होती हैं तो हो सकता है इसको निकाल दिया जाए, बट इसकी जॉब पक्की है। और अगर आपने वहां पे जाके परफॉर्म कर लिया और मान लीजिए आईएम या ऐसा कुछ प्लान कर लिया तो फिर यहाँ जाओगे सीधा, यहाँ ये कंपैरिजन इतना बड़ा डिफरेंस कि I passed out in like 2011, ठीक है। तो 2011 से लेकर 2029 ईयर्स इट्स बीन, मुझे पता है 9 साल में क्या डिफरेंस आया है सारे मेरे साथ वालों के करियर, किसने क्या पाथ चूज करा तो कौन कहाँ पहुंच गया और आज कौन कहाँ है। बात ये नहीं, देखो बात ये नहीं है कि वो, यहाँ पर बात आपकी डिस्चॉइस की है। अब आप कहीं पे भी पहुंच जाओ तो प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाओ, फाइनल तो वहीं तक, इतने बड़े एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हो आप, तो उसकी तो कोई लिमिट्स नहीं है, बट आपको कहाँ सेटल होना है उस पर कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर यू डू यू हैव टू बी हैप्पी विद। आप अगर यहाँ पर बनाते हो 6 लाख का पैकेज एंड यू आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, दैट्स फाइन। और अगर आप यहाँ पर भी पहुंच गए और यू आर नॉट लिविंग हैप्पीली, देन दैट्स व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट। ठीक है, तो वो बैलेंस आपका है, मैं ना इसे खराब कह रहा हूँ ना मैं इसे खराब कह रहा हूँ। चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स, वेयर यू वांट टू गो। एक रहता है यार कि चलो ठीक है हमको लाखों में नहीं आना है, हमको हजारों में आना है, तो ये लाखों में है और ये हजारों में, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। इतना ही है, राजा तो कोई नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। देखिए अब बात इतनी सी है कि ये मशीन्स है ना, अब इस मशीन पर देखिए, इसे थोड़ा भूल जाते हैं अभी, इसको ड्रॉप करते हैं, हम इसे देखते हैं। पानी गिर रहा है एक्शियल, तो ये एक्शियल फ्लो मशीन, एक्सिस ये रोटेशन ऑफ एक्सिस, यहाँ पर पानी रेडियली इनवर्ट आ रहा है, करेक्ट, और ये आपका रोटर ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये रोटेशन का प्लेन है और पानी आप देखिए ऐसे अंदर आ रहा है टॉप व्यू से देखिए, ये रेडियल मशीन। तो there is one component of velocity which is responsible for the flow, एक फ्लो कंपोनेंट। एक होता है आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट, अब इन दोनों कंपोनेंट को ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए ये रोटर है, ये दिख रहा है आपको, जरा चैट बॉक्स में बताइए मुझे तरीके से दिख रहा है, मुझे दिखा रहा हूँ ये सब कितना व्यू आ रहा है मुझे, एक बार तो देखो बढ़िया दिख रहा है, ठीक। देखिएगा ध्यान से, ये रोटर है, ये इसकी एक्सिस है, ये ऐसे रोटेट हो सकता है, ठीक है। अब पानी रैंडमली आया किसी आउटर पेरिफेरी पर, किसी भी पेरिफेरी पर आया, कहीं पे भी आके टकराया, किसी भी पॉइंट पर आके पानी टकराया, जेट टकराया। अब वो जेट तो रैंडमली आया ऑब्लिक 3 डायमेंशन में, ऐसा है, बट इसके मैं 3 मीनिंगफुल कंपोनेंट्स कर सकता हूं। मीनिंगफुल से मतलब जिससे कुछ फिजिक्स बाहर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन वाला कंपोनेंट, हाँ ग्रीन वाला कंपोनेंट, दिस ग्रीन कंपोनेंट इज कॉल्ड एज एक्सियल कंपोनेंट, क्योंकि ये इस रोटर के एक्सिस के अलोंग, ये रोटर ऐसे रोटेट हो रहा है और ये उसके एक्सिस के अलोंग। अगर आप इस ब्लू वाले को देखें, मैं अपने आप को देख के बताऊंगा, अगर आप इस ब्लू वाले को देखें तो ब्लू वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये देखिए
रेडियल है, ये रेडियल, और ये वाला जो है ये देखिए एक्शन, ये एक्शन, ग्रीन वाला एक्शन और ब्लू वाला रेडियल। व्हाट अबाउट दिस गाय, ये देखिए ये रोटर है आपका, ऐसा कैसे, ये रोटर, ये रोटर का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंट। आई टेक इट वन मोर टाइम। तो एक रैंडमली 3 डायमेंशन में फ्लूइड का कंपोनेंट आया, ठीक है, ये आया, ये फ्लूइड, ये जेट है हमारा, ये जेट रैंडमली आया और इस पे आकर स्ट्राइक कर गया, और जब इसने स्ट्राइक किया तो इसके 3 मीनिंगफुल कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट था एक्सिस के अलावा ग्रीन वाला, ब्लू वाला अगर आप देखें, ये हटा देता हूँ, ब्लू वाला अगर आप देखें तो ये देखिए रेडियल है, ग्रीन वाला जो था वो एक्शन था, कैसे रोटेट हो रहा है, और ये ब्लैक वाला टेंजेंशियल इस व्यू में। So what is the, I hope this is clear, please let me know. So what is the importance of these 3 components? So we have seen that there are 3 components rather, इसे मैं हटा देता हूँ। पहला आपने टेंजेंशियल कंपोनेंट, दूसरा आपने देखा रेडियल, तीसरा आपने देखा टेंजेंशियल। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बड़े ध्यान से, टेंजेंशियल नहीं सॉरी, एक्सियल। कि अगर मैं अभी मेरे हाथ में ये 2 ही कंपोनेंट लेता हूँ, एक है टेंजेंशियल और एक है रेडियल। अब रेडियल कंपोनेंट जो है, ध्यान से सुनिएगा, जो रेडियल कंपोनेंट है मेरा वो सेंटर से पास हो रहा है, तो ये कोई भी रोटेशन क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्लियर। और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ये रोटेशन क्रिएट करेगा, और हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, रोटेशन क्रिएट करना, करेक्ट। तो माय होल ऑब्जेक्टिव ओवर हियर इज टू क्रिएट रोटेशन। तो फिर भी मैं वेलोसिटी को, जो मैंने आपको भी वेक्टर दिखाया रैंडमली जो आ रहा है, उसको ये एक्सियल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट क्यों दे रहा, क्योंकि डिजाइन तो मेरे हाथ में है जेट की, जेट को जैसे मैं फेंकना चाहूं फेंक सकता हूं उसके ऊपर, तो क्यों ना मैं पूरा का पूरा टेंजेंशियल ही दूं, इसे प्योर टेंजेंशियल एंट्री कराऊं, ताकि पूरा का पूरा मास, पूरा का पूरा वेलोसिटी का वेक्टर रोटेशन में मदद करे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझिए जो रेडियल था कंपोनेंट, वो रेडियल कंपोनेंट कहां से पास हो रहा था, वो रेडियल कंपोनेंट पास हो रहा है आपका रेडियस से, सेंटर से, सेंटर से तो पास हो रहा है, तो रेडियल रोटेशन क्रिएट कर नहीं पाएगा। और एक्सियल कंपोनेंट भी अगर आप देखो तो ये ऐसा है, ऐसे रोटेशन थोड़ा कर सकती है आप, ये एक्सियल कंपोनेंट ऐसे रोटेशन क्रिएट कर सकता है, बट रोटेशन तो ऐसे होगा ना, मशीन इज नॉट अलाउड टू रोटेट लाइक दिस, इट कैन ओनली रोटेट लाइक दिस। So these 2 components are not creating any rotation, that's the point. So these 2 are not creating any rotation, not creating any rotation, and सिर्फ tangential component responsible for creating। तो फिर क्यों हमने ये 2 कंपोनेंट और दिए एक्स्ट्रा, जवाब दो भाई। अरे पढ़ रहे हो ना अभी, तो बता दोगे यार, सिंपल सा सवाल है। अब इतनी बड़ी हिंट देता हूँ, आंसर भी लिख दिया था मैंने उसका, फिर मिटा दिया बाद में। देखो भाई,
अगर आपका कंपोनेंट सिर्फ टेंजेंशियल होगा वेलोसिटी का, तो वो तो टेंजेंशियल ही आएगा और टेंजेंशियल ही निकल जाएगा। बट आपके फ्लूइड को क्या करना है, फ्लूइड को आपको फ्लो भी तो कराना है। अगर एक्शियल मशीन है तो उसको एक्शियल डायरेक्शन में फ्लूइड को इनलेट पे से निकाल के आउटलेट पे ले जाना है, तो फ्लो कैसे कराओगे? तो सिर्फ आपको यहाँ पर फ्लूइड को सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि फ्लूइड से सिर्फ रोटेशन ही करवाना है, आपको फ्लूइड को फ्लो भी कराना है मशीन के अंदर। तो दीज टू कंपोनेंट्स आर नोन एज फ्लो कंपोनेंट्स। अगर एक्शियल मशीन होगी जैसे कि ये आप देख रहे हो उधर, तो इसमें सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट ही होगा, रेडियल कंपोनेंट नहीं होगा। और अगर ये रेडियल मशीन है इस तरह से, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, अभी मिक्स छोड़ दो, मिक्स की बात बाद में करेंगे ना। तो यहाँ पर इनलेट पर तो रेडियल कंपोनेंट होगा, एक्सियल नहीं, लाइक दिस। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सब्जेक्ट, क्योंकि आप बार बार फ्लो कंपोनेंट्स बनाते हो मशीन्स में, बट बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि फ्लो कंपोनेंट का पीछे का फिजिक्स क्या है। तो ये सारे फ्लो कंपोनेंट्स हैं और ये सारे टेंजेंशियल कंपोनेंट हैं। दोनों नहीं होंगे किसी भी मशीन में, कोई एक हो सकता है। इनलेट पे एक होगा, आउटलेट पे कोई दूसरा हो सकता है अगर मिक्स हो तो। अब ये सब बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर इसको इनलेट, जैसे यहाँ पर देखो आप तो बोलोगे कि इनलेट पर रेडियल है, इनलेट रेडियल है, एग्जिट एक्शियल है, ऐसा क्यों? दिस कैन बी अ क्वेश्चन, है ना सर। ये अगर टरबाइन है तो फ्लो रेडियली इनवर्ड क्यों है, रेडियली आउटवर्ड क्यों नहीं? दिस कैन बी अ क्वेश्चन। सर ये एक्शियल क्यों बनाई हमने, मिक्स थी तो सही। सर ये टेंजेंशियल क्या है? इनफाइनाइट क्वेश्चंस राइट नाउ, बट as I said to you कि अभी हम थोड़ा बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, so let's not discuss about the machine to machine specific ना हो अभी, rather than let us understand कि what are our requirement। अगर हम कोई जेट छोड़ रहे हैं मशीन के ऊपर, तो वो जेट should be capable of creating rotation also, and that jet should have sufficient velocity कि वो मशीन के अंदर फ्लो कर सके। So that's why we have two categories of velocities. First is the tangential one, and another one is the flow component. Okay. Chal. Having said that, now we will look into the energy equation for rotodynamic machines, and this would be the first step towards understanding rotodynamic machines. Energy equation for rotodynamic machines. Okay, and at a steady state हमारे पास इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है भाई? हमारे पास इक्वेशन है रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू, जस्ट टू गेट यू विद दिस, मैंने यहाँ पर पेस्ट करी थी आपके सामने ताकि आपको याद रहे, हम ये डिराइव कर चुके हैं टॉर्क, और हमें टॉर्क का ही फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। लेट मी कॉपी इट एज इट इज, एंड दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, है ना। हमने असम्पशंस लिए थे और वहां से ये हमारे पास रिजल्ट आया। ठीक है सर, बढ़िया है, अच्छा है। आप क्या तो इससे टॉर्क डेवलप करना, निकालना है आपको। टॉर्क से पावर आ जाएगा, और पावर से आप मास फ्लो रेट, वेट अगर डिवाइड, मास फ्लो रेट का रेट मतलब मास फ्लो रेट इनटू वेट डिवाइड कर दोगे तो हेड आ जाएगा। तो हमें बेसिकली एनर्जी इक्वेशन फॉर रोटोडायनामिक मशीन्स में निकालना है कि मशीन्स कितना हेड डेवलप कर सकती है। दैट इज व्हाट इज अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Just give me a minute.
कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब let us assume that we have a machine अब यहां पर ये सेंटर है, ठीक है। डेरिवेशन के लिए मैं काम करता हूँ, इसे रेडियल फ्लो मशीन मान लेता हूँ, बट इट इक्वली होल्ड्स गुड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ मशीन। And let us say that there is one blade over here. एक जनरल रोटोडायनामिक मशीन बना रहे हैं, अभी कुछ कमिट नहीं कर रहे। Okay, and let us say that this is the position vector of this blade over here, and it can be denoted as R1. Now, मान लीजिए जेट आया है। अब जेट आया तो जेट की यहाँ पर वेलोसिटी v1 है। इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो टेंजेंशियल, दिस इज टेंजेंशियल, टेंजेंशियल को मैं vw1 कहूंगा, और द अदर कंपोनेंट वुड बी द रेडियल, व्हिच इज लाइक अलाइंड रेडियल, vf1। तो जेट आया और जेट के साथ क्या किया, इस ब्लेड, ये जेट पे ब्लेड फ्लो हुआ, ब्लेड पे जेट फ्लो हुआ, ओके, बिकॉज़ इट इज हैविंग सम रेडियल कंपोनेंट विद इट। अच्छा, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट v1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ jet, absolute velocity v1, and vw1 is the absolute से मतलब ग्राउंड से मेजर किया उसको, ठीक है। vw1 is the tangential component of and vf1 is the flow component. This flow component in this case is taken as a radial, but it could be axial also. Now, having said that, let us say that this fluid at exit इस तरह से exit मार रहा है, ये absolute velocity, मतलब ग्राउंड पे बैठ के देखोगे तो ऐसी दिखेगी। फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं तो रैंडमली बना रहा हूँ यार, डोंट थिंक अबाउट डायरेक्शन की सर ये ऐसे कैसे आई, जस्ट अ रैंडम। Again, it will have a radial component like this, and will have a tangential component like this. इसे मैं vw2 कहूंगा, इसे मैं vf2 कहूंगा। That's what we call it as. And this is our blade, which is doing this whole job. तो ब्लेड ने क्या किया? If you observe very carefully, ब्लेड ने फ्लूइड का लीनियर मोमेंटम चेंज किया, and since linear momentum has been changed, आप अगर देखेंगे तो vw1 का O पॉइंट के अबाउट पहले कुछ एंगुलर मोमेंटम था। देखो ये vwf1 समझना, एक मिनट वापस से लेते हैं इसको। vw1 में से दो कंपोनेंट है, आई टेक इट वन मोर टाइम, v1 के दो कंपोनेंट है, vw1 एंड vf1। vf1 is passing through center, therefore it is not very important component from angular momentum point of view. Okay. Similarly, vf2 is not also very important right now at this stage, क्योंकि ये कोई भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगर एक्सियल कंपोनेंट कर भी रहा होता तो हमारा रोटर डिजाइन ही नहीं है ऐसे रोटेट करने के लिए, तो दिस इज ऑफ नो यूज टू अस। So what I am saying is that let's focus upon
this VW1 and VW2. VW1 इनिशियल यहां पर मोमेंटम क्या था, VW1 m dot VW1 R1 और यहां पर कितना है m dot VW2 R2. So angular momentum has been changed on the of the jet. अब जेट का अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ है, जेट का एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ है, तो वो किसने किया है सर? वो ब्लेड ने किया है. तो ब्लेड हैज imparted some torque on jet to change its angular momentum. Therefore, as a consequences of laws of nature, that is Newton's third law, since blade has imparted some torque on jet, for that reason only its momentum has been changed. Therefore, jet will also impart equal and opposite momentum, or equal and opposite torque, sorry, on the blade. And this equal and opposite momentum imparted by jet on blade will cause rotation of blade. And this rotation will produce some torque and some power. And this power is what we actually want to calculate. I'll repeat it once more time. Blade has imparted, or to start with the beginning, that if you want to understand the principle, jet angular momentum, step by step समझिए, angular momentum of jet has been changed. किसने किया? By. और एंगुलर मोमेंटम चेंज करने के लिए टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज टॉर्क और सम वर्क हैज बीन imparted on blade on jet by blade. Therefore, jet will also impart torque on blade equal and opposite, and because of this will cause blade to, this will cause blade to, or this will cause rotation of rotor. इस तरह से आपका रोटर रोटेट होगा. एक मिनट, मुझे बाहर कर दिया है, मैं अंदर आ जाता हूँ. ठीक है ना? So what is that power delivered, a power produced, is what we want to. So let's begin that. And of course V2 is absolute velocity of jet. एक मिनट यार, बैटरी पूरी खत्म हो गई है, एक मिनट दो.
Now, let us use our momentum theorem to understand the basic concept. मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ यूज करेंगे, बाद में इसे शिफ्ट करना। तो टॉर्क, this is exerted by या exerted on jet by blade. Blade बोल लीजिए, blade is attached to rotor, तो आप rotor भी बोल सकते हो, because blade is attached to rotor, you can call it as इसी के। तो ये on jet आएगा। आउट कितना है इसका एंगुलर मोमेंटम? देखिए, ये r2 इसका वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, r2 इक्वल टू रो क्यू क्यों मैं मास फ्लो रेट लिख सकता हूँ, या आप चाहे तो रो क्यू भी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर क्रॉस वी इंपॉर्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या है? VW2 R2। अब इधर R2 है आपका ऊपर की तरफ, तो आपका इसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो अंदर की तरफ आएगा। लेट अस से दैट दिस इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। लेट अस टेक दिस एज पॉजिटिव। तो हमारे पास आया R2 V2। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हाँ, गेट के न्यूमेरिकल्स इसी के बेसिक से बनेंगे। क्या बेसिक्स है मैं बताऊंगा। VW माइनस आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसका भी अगर आप चेक करोगे तो अंदर ही आ रहा है, तो रो क्यू नाइन्टी डिग्री है, ये तो टेंजेंशियल है तो 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो दैट डजंट मीन एनी एक्सप्लेनेशन। VW1 R1 ठीक है, एंड दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ टॉर्क एक्सर्टेड बाय जेट ऑन रोटर, ये क्या होगा? बाय जेट ऑन रोटर क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट, VW1 R1 माइनस रो क्यू VW2 टॉर्क एक्सर्टेड बाय जेट ऑन। तो ये तो हमारा काम है चला। एक चीज और जो बहुत ठीक है, वो तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अज्यूम क्या किया है ये तो हम बाद में बात करेंगे, बट पहले एक मिनट पहले ये बात सुन लो कि ये रोटेट ऐसे, ये तो ठीक है सर, समझ गए। अब यहाँ पर कुछ वेलोसिटीज और डिफाइन करते हैं हम, जैसे U1। U1 क्या है? U1 जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ रोटर एट इनलेट, और U2 क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ रोटर एट आउटलेट। क्योंकि आगे चल के जो गेट में प्रॉब्लम्स आएंगे ना, आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होगा कि सर हमें ये पता नहीं चल रहा है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है। तो ध्यान रखें, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जेट वेलोसिटी या जेट एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल velocity of rotor have same line of action। सर डायरेक्शन सेम नहीं होगी? नहीं, डायरेक्शन सेम का कमिटमेंट नहीं है। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ बनाया, अगर यही V2 में फॉर एग्जांपल, अगर एक केस और बता रहा हूँ, मैं V2 ऐसे बना देता तो क्या होता? तो सर VF2 ये होता और ये आपका क्या होता? VW2 होता। इन दैट केस तो अगर आप देखें यहाँ पर रोटर की वेलोसिटी क्या है? आपकी रोटर की टेंजेंशियल वेलोसिटी U2 यहाँ पर ये है,
तो ब्लू वाला केस जो हमने अज्यूम किया है उसमें रोटर की वेलोसिटी आउटलेट पे और इनलेट पे दोनों जगह क्या है, सेम। आर यू गेटिंग? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर मान लो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती तो ये जो VW2 है, अगर आप इसके बाद मोमेंट लेते तो ये R क्रॉस V पॉजिटिव आ जाता। देखो ना, अगर अब आप यहां से R क्रॉस V लेते हैं तो पॉजिटिव आ जाता। मतलब साइन जो है ये VW2 की, ये डिपेंड करती है कि आपका जो प्रॉब्लम आने वाला है फ्यूचर में, वो उसमें एग्जिट जो है वो रोटर की टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग है या उसके अपोजिट है। अगर अलोंग है तो प्लस, करेक्ट, नहीं तो माइनस। अब उल्टा हो गया, देखो यहाँ पर ये माइनस है। अगर ये माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये सेम, क्योंकि यहाँ पर उल्टा कर दिया ना आपने, तो यहाँ पर बेसिकली आपको दोनों चीज लेना पड़ेगी, प्लस और माइनस। प्लस कब आएगा, प्लस तब आएगा जब डायरेक्शन अपोजिट है। और माइनस कब आएगा, जब डायरेक्शन ऑफ यू एंड VW आर सेम। क्योंकि पहले माइनस था, देखिए ये रिवर्स किया ना आप, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो पहले माइनस था। है ना, बाद में हमने एक और केस दिखा तो उसको प्लस माइनस। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये प्लस माइनस का, और दूसरा ये कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। दूसरा कि अगर आपको कभी टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं मिले जेट की, तो आप ब्लेड की आप रोटर की टेंजेंशियल मिल जाएगी आपको, वहां से आप मैच कर लीजिए, है ना। जो कंपोनेंट वेलोसिटी का उसके साथ में, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल। तो ये आगे गेट में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी, उसे वेलोसिटी ट्रायंगल बना के दिखाना है। तो इसे थोड़ा सा और हम रिड्यूस करते हैं हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से मतलब सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई मीन बाय दैट इज दिस इज द टॉर्क। अब अगर मुझे पावर निकालना है तो दिस इज पावर एक्सर्टेड बाय जेट ऑन व्हाट रोटर, है ना। तो ये ध्यान रखिए, बाय जेट ऑन रोटर है, मतलब ये पावर प्रोड्यूस आया है, पावर प्रोड्यूस्ड आया है एक तरह से अगर आप देखें तो दिस वुड बी नथिंग बट रो क्यू VW1 R1 प्लस माइनस को P लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हम सॉल्व कर सकें। पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपको हेड लिखना है तो हेड क्या होता है सर, हेड होता है हमारा, पावर को आप m.g से डिवाइड करें, दिस इज हेड आ जाएगा आपका। m.g ये क्या लिखा है, ये m डॉट लिखा हुआ है, तो VW1 R1 प्लस माइनस VW2 R2 इंटू ओमेगा अपॉन जी, m डॉट कैंसिल हो जाएगा, दिस m डॉट एंड दिस रोज भी विल कैंसिल, तो जी बचे। अब एक चीज और देखें आप, U1 की वैल्यू क्या होगी। U1 will be of course equal to WR1 and U2 will be equal to WR2। बस ये लिख दीजिए, head equal to WR1 is U1 plus minus WR2 is U2। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, पूरी पूरी आपकी मशीन इसी फॉर्मूले पे। कौन सा, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज हेड इम्पार्टेड बाय, क्या नाम है इस इक्वेशन का बताओ, अभी पढ़ रहे हो ना आप लोग, हेड ऑयलर। ऑयलर इक्वेशंस। दिस इज ऑयलर हेड, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। हेड इम्पार्टेड बाय जेट। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया
ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 0 आई, इसका मतलब ये पावर हेड इम्पार्ट हुआ है वाकई में। हेड इम्पार्ट हुआ है बाय जेट, सॉरी बाय जेट ऑन रोटर, मतलब रोटर को एनर्जी दी है जेट ने, मतलब ये पावर प्रोड्यूसिंग है, मतलब ये टरबाइन है। और हेड अगर लेस देन 0 आया, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि एनर्जी भाई हेड नेगेटिव आ गया, मतलब हेड एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो गई है जेट में से, तो वो पावर एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं हुई है, सॉरी रोटर को एनर्जी, रोटर से एनर्जी एक्सट्रैक्ट हुई, करंट अगर नेगेटिव आता है तो ये पंप आ जाए। दिस इज द ऑयलर्स हेड एंड ऑयलर्स इक्वेशन। प्लस माइनस का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा। माइनस कब लोगे आप? जब आप दोनों की डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गई तो क्या करोगे? प्लस लोगे। ये चीज का एक ध्यान रखिएगा आप लोग। इस इक्वेशन को हम अभी तोड़ेंगे 3 पार्ट में, पर उससे पहले वेलोसिटी ट्रायंगल देख लेते हैं कैसे बनता है। लेट्स से दैट ये ब्लेड है। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जेट आया, कैसे आया थे? ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी, क्या ये इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी से स्ट्राइक कर पाएगा? क्या ये इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी से स्ट्राइक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका रोटर रोटेट हो रहा है, करेक्ट? लेट्स से ऐसे रोटेट हो रहा है, इसकी भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, ओके, जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये ऐसे। इसको थोड़ा सा एक मिनट, ये मान लो रोटर घूम रहा है आपका, ऐसे शुरुआत से देखो, ये रोटर घूम रहा है, ये ब्लेड है, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी u1 किसकी? रोटर की, ब्लेड की, इस पॉइंट की। अब ये जेट आया आपका, है ना, ये जेट आया, ये जेट आया, v1 वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब v1 से आया और ये खुद भी u1 से जा रहा है, तो क्या ये उससे टकरा पाएगा? नहीं। एक्चुअली में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू रोटर होगी वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस वेलोसिटी ऑफ रोटर। तो वो कैसे लिखोगे आप? ये वाला वेक्टर माइनस कर दोगे, तो यू विल गेट अ वेलोसिटी वेक्टर ओवर हियर vr। ये बेसिकली vr1 से स्ट्राइक करेगा, और ये vr1 ऐसा होना चाहिए कि vr1 मस्ट बी टेंजेंट टू ब्लेड एट एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री, अभी तो एंट्री हो रही, तो एंट्री की बात करें। और u1 क्या है? u1 इज टेंजेंट टू रोटर, क्योंकि vr1 अगर टेंजेंट नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वो ग्लाइड नहीं कर पाएगी, और बेसिकली इट वुड बी लाइक अ शॉक, इट शुड बी अ शॉकलेस एंट्री, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसलिए vr1 ऐसे इसको बोलते ना, बिल्कुल चिपकते हुए जाना चाहिए। तो ये जेट आया आपका, है ना, ऐसे ये ग्रीन ब्लू से जेट आया, बट चूंकि आपका रोटर ऑरेंज से चल रहा था तो वो ग्रीन से स्ट्राइक करेगा, और ये जेट जाएगा इस तरह से, और ये बाहर, अब ये बाहर हुआ मान लीजिए किसी वेलोसिटी vr। अब ऐसा कुछ मत सोचिए कि वेलोसिटी कम है ज्यादा, बस बाहर,
यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रोटर की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। लेट्स से रोटर की टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे u2, तो ये आपका u2 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं आपका है ना, क्योंकि एक बात ध्यान रखें, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू रोटर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ रोटर, तो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू v माइनस u, ये हमेशा चलेगा। तो यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है। VR2 देखो, इसका मतलब क्या हुआ, VR में आप U1 ऐड कर दो आपको V मिल जाएगा, तो VR में आप अगर U ऐड करोगे तो आपको V मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू ड्रॉ वेलोसिटी ट्रायंगल। अब इसके V1 के दो कंपोनेंट आप जानते हो, एक कंपोनेंट तो यहाँ पर है, ये दिस इज फ्लो कंपोनेंट एंड देयर इज अनदर कंपोनेंट दिस वन। अनदर कंपोनेंट इज दिस वन, दिस इज V, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। अब इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट ये है, ये कैसे पता चलेगा? जो U1 के पैरेलल होगा वो टेंजेंशियल कंपोनेंट, ऐसे देखना, और जो बाकी वाला बचा हुआ होगा वो रेडियल कंपोनेंट या एक्सियल कंपोनेंट होगा या फ्लो कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो V2 के दो कंपोनेंट हो गए, एक ही और एक ही। तो V2 का जो ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज लाइक the other one, and this component is VW. इस तरह से हमें वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है और डिजाइन इस तरह से करनी है कि VR1 ब्लेड पे टेंजेंट होना चाहिए और U जो है वो रोटर का टेंजेंट है, दोनों में अंतर है। So I'll write VR is the relative velocity of jet this is about a velocity triangle। कल की क्लास यहीं से ऊपर करेंगे, हम यहीं से उठाएंगे। मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर हम लोग और डिस्कशन करेंगे।